waver between two opinions. If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'elohim. But I thank God, like Moses, the Lord. Hello, welcome to this special episode of Angel TV. नमस्कार, एंजल टीवी के खास सत्र में आपका स्वागत करते हैं। My name is Stephen Powell. और मेरा नाम स्टीवन पावल है I have a ministry called Lion of Light Ministries based in the United States. और अमेरिका में हमारी सेविकाएं है जिसका नाम लाइन ऑफ लाइट है। But I'm so happy to be here with you for this special episode on Angel TV. एंजल टीवी के इस खास सत्र के द्वारा आपके बीच में होने में बड़े खुशी की बात है। I'm going to be talking to you about an encounter I had with the Lord that involved the spirit and power of Elijah several months ago. कुछ महीने पहले जो मेरे परमेश्वर के साथ की मुलाकात के द्वारा जो शिक्षा मैंने पाई है आत्मा और सामत एलिया का, उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। But building up to talking about this revelation, I've been sharing with you a little bit of my testimony, my history in God. और इस शिक्षक को बताने से पहले आपको मैं तैयार कर रहा था कि मैं अपनी गवाही के द्वारा और दर्शनों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। Every revelation in God builds on top of each other. परमेश्वर के अंदर की हर एक प्रकाशन एक दूसरे के ऊपर दूसरे वो हमें बनाता जाता है। So I felt I've had to tell you what led up to my encounter with the spirit and power of Elijah. और इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता सकूं क्या था, मुझे अगुवाई दिया जो इस प्रकाशन को पाने के लिए आत्मा और सामत एलिया का। We spoke last week about how I was eventually raised up into full-time ministry. पिछले हफ्ते हमने बात की और बताया कि कैसे मैं संपूर्ण समय की सेविकाई में आया। We talked about how the Lord sent a man of God to actually call me out in the middle of a service. मैं आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने एक प्रभु के दास को भेजा जिसने सभा के बीच में से मुझे सेविकाई में बुलाया। I started traveling with this man of God around the world and seeing revival all over the place. इस प्रभु के दास के साथ मिलकर पूरे संसार पर मैं भ्रमण किया और कई जगह में परमेश्वर की चिन्ह और चमत्कार होता हुआ देखने लगा। I talked about last week a revival I was a part of in South Korea in the year 2012. और मैंने बताया कि कैसे 2012 की उस बेदारी जो दक्षिण कोरिया में हुआ उसमें कैसा मैं शामिल था। It was during that time that I started to really get more acquainted with many angelic ministries that were working with us. और तब ही उन सेवा के दौरान मुझे उन सब बातों की जानकारी मिलने लगी, अनुभव होने लगा कि सेविकाई के दौरान परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वर्गदूतों की अनुभव की। I remember several of the meetings there in South Korea. The Lord opened my eyes to show me a particular angel that was working with us. और दक्षिण कोरिया की सेविकाई के बीच में ही परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोला ताकि मैं देख सकूं एक नियुक्त स्वर्गदूत जो हमारे सेविकाई के लिए वहां पे नियुक्त किया गया है। This angel called himself a glory angel, the glory of the Lord. और उस स्वर्गदूत को महिमा का स्वर्गदूत कहते हैं जो परमेश्वर की महिमा है। He was an angel that worked in the release of God's glory in the earth. और वो स्वर्गदूत उसके लिए कार्य कर रहा था कि इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को ढेल सके। I saw this angel working with us in the meetings in all the signs, the wonders, and the miracles that were being performed. और मैं देखने लगा कि स्वर्गदूत उन सेवकाई के दौरान हमारे संग मिलकर कार्य कर रहा है ताकि सेवा में से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। I also saw something very peculiar. और बहुत ही एक अलग चीज को भी मैंने देखा है। I saw financial angels working with us as well. हमारे संग संग आर्थिक स्वर्गदूतों को भी कार्य करता हुआ मैंने देखा है। I remember there were several notable financial miracles that happened at the beginning of this revival. हम देखने लगे इस बेदारी की शुरुआत में कई सारे ऐसे आर्थिक चमत्कार हुआ हमारी जरूरतों के समय पर। The Lord showed me that those financial miracles actually enabled us to stay longer and extend the meetings there in Korea. और परमेश्वर ने दिखाया कि कैसा ये आर्थिक चमत्कार और आर्थिक अद्भुत कार्य हमें इन सभाओं के लिए यहाँ पे सेविका के लिए लंबे समय तक करने के लिए हमें मौका मिला। The Lord showed me how there's always an anointing for finance that comes with the revival anointing. और परमेश्वर ने ये भी दिखाया कि हर वक्त ये बेदारी के अभिषेक आते आते साथ ही साथ आर्थिक अभिषेक भी आता है। This is when I first started being visited by financial angels. ये मेरा पहला बार था कि मैं आर्थिक स्वर्गदूतों से मुलाकात किया।
So, what I want to begin to talk to you about today is purity in regard to finances. इसीलिए आज मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ ये बात करते हुए अपनी आर्थिक चीजों में शुद्ध रहने पाएं In preparation in my life for the spirit and power of Elijah to come, और जिससे कि परमेश्वर मुझे तैयार कर सके मेरे जीवन में आत्मा और सामर्थ एलिया की प्रकाशन पाने के लिए। the Lord began to show me how finances work in the economy of heaven. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया स्वर्गीय आर्थिक बीच में परमेश्वर के वित्त कैसे कार्य करता है। The first part of the financial anointing the Lord introduced me to was the financial anointing to fund the harvest. और पहली जो अनुभव परमेश्वर ने दिया कि आर्थिक अभिषेक के द्वारा जिससे कि परमेश्वर की सेविकाई के लिए कैसे मैं योगदान दे सकूं, मदद कर सकूं। I saw many people come to the Lord. I saw genuine revival, signs, wonders, and miracles, but I saw God fund it with His finances. बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को सचमुच अपने दिलों के लिए खोलकर यीशु की ओर मुड़ता हुआ हमने देखा, क्योंकि इन सभाओं में हमने अद्भुत रीति से परमेश्वर की आर्थिक प्रबंध को देखा। I remember at that time, God began to grow my heart for the harvest. मुझे याद है कि परमेश्वर उस समय मेरे हृदय को उसके कटने के लिए, उसके फसल के लिए हृदय को बढ़ाने लग गया। God began to put nations in my heart to see reached for the gospel. परमेश्वर ने राष्ट्रों को मेरे हृदय के अंदर डालने लग गया ताकि मैं देखने पाऊं वे परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए मुड़ने पाएं। But as God put that desire to reach nations for Him, He also put the faith in me that God would finance those endeavors. जब परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर वो बोझ और दर्शन डाला कि इन राष्ट्रों में उनको मसीह की ओर फेरने के लिए मैं ले चलूं, साथ ही साथ परमेश्वर ने मेरे अंदर विश्वास भी डाला, मेरे आर्थिक लिए उस पर भरोसा रख सकूं। This is important to understand. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको समझना है। There's a lot of misunderstanding about finances in the church. कलीसिया के आर्थिक विषय पर कई प्रकार की गलतफहमियां हैं। Of course, anybody can abuse anything in the church. हाँ, निश्चय कलीसिया की कई बातों के लिए कोई ना कोई जो है उसको भ्रष्ट कर सकता है, उसे खराब कर सकते हैं। But just because people are abusing finances in the church doesn't mean that God is not into biblical prosperity. क्योंकि कलीसिया में अर्थ की बहुत प्रकार की जो है शोषण हो रहा है, इसकी मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आर्थिक रीति से मैं आशीष नहीं देना चाहता हूँ। It's all about the harvest. परमेश्वर के लिए सिर्फ कटनी मायने रखता है। It's not coincidence that when the prosperity movement was first launched in the body of Christ about 70 years ago, और कोई ये इत्तेफाक नहीं थी जो पहली बार 70 साल पहले ये कुशलता की जो सुसमाचार कलीसिया के अंदर फैलने लगा। it's not coincidence that at that same time a massive movement of harvest and evangelism was being launched at the same time. और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसी समय पर कटनी का या फसल का एक बड़ी सुसमाचार की सेवकाई की बेदारी निकलने लगा। This is like the time when men of God like T.L. Osborne and Jack Coe and Oral Roberts began to go to the nations. Billy Graham began to go to the nations in evangelism. और ये कोई इत्तेफाक नहीं थी, उसी समय पर टी.एल. ऑसबर्न हो या ओरल रॉबर्टसन हो, बिली ग्राहम हो, सुसमाचार के लिए, प्रभु के वचन के लिए पूरे संसार पर कार्य करने लग गए। At that same time, that release of evangelism, there's also the release of the revelation of biblical prosperity in a way that we hadn't seen. और जब ये सुसमाचार की कार्य चल रही है, साथ ही साथ परमेश्वर की वचन आधारित कुशलता की बेदारी को भी परमेश्वर ले चल रहा था। Why is that? क्यों ऐसे हो रहा है? That's because the dream that God's put in our heart to reach the nations, He wants to also put the faith in our heart to see the finances to fund that. और जैसे परमेश्वर ने वो बोझ डाला राष्ट्रों में प्रभु के लिए जीतने पाए, यीशु को उनके तक पहुंचाने पाए, साथ ही साथ परमेश्वर वो विश्वास हमारे अंदर डालना चाहता है इस कार्य के लिए जो आर्थिक जरूरतों को वो कैसे प्रबंध करता है। But you see, finances is a power. आप देखते हैं कि आर्थिक एक सामर्थ के समान है। And we have to continually cleanse ourselves before the Lord. हमें लगातार परमेश्वर के सामने शुद्ध करना जरूरी है। We have to continue to be refined and sanctified unto God and His purposes. लगातार हम शुद्ध किए जाएं, हम जो है स्वास्थ्य किया जाए परमेश्वर के आर्थिक और परमेश्वर के सामने। We have to continually ask the Lord to circumcise our hearts. हमें परमेश्वर से लगातार मांगना है कि हमारे हृदय को खतना करने पाए, Cut away everything that doesn't belong. जो उसके लिए नहीं है उन सब बातों को काट के दूर किया जाए। Because as the power of God starts flowing through your life in ministry, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो आपके सेविकाई के लिए बहने लगता है, the power of finances will as well. साथ ही साथ आर्थिक के अभिषेक का भी।
because God is funding you what He's calling you to. जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया है उसका प्रबंध भी वो करते हैं, But power can corrupt, मगर सामर्थ उसे भ्रष्ट कर सकता है, power can ruin you. सामर्थ आपको बिगाड़ भी सकता है। This is why in the last few episodes I've talked about the wilderness training that is needed for everyone called to move in the power of God. इसलिए पिछले सत्रों में मैं आपसे बात किया कि ये निर्जल स्थानों वाले अनुभव जरूरत है, जिससे कि परमेश्वर की कार्य के लिए आपको तैयार कर सके, नम्र कर सके। Remember what the Lord has taught us in these episodes. Don't ever forget it. और इन सत्रों में परमेश्वर ने जो भी सिखाया है उन सब बातों को कभी भूलिए मत। So important to be prepared to carry God's power. आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप तैयार हो जाएं कि परमेश्वर की सामर्थ को उठाए चलने के लिए। I remember during that time of my life when I was traveling with this man of God, I had a dream. अब मुझे याद है उन समय पर जब इस प्रभु के दास के साथ मिलकर संसार भर में भ्रमण कर रहा था। I remember I found myself standing on a platform in what looked like a theater. और मुझे उस वक्त दर्शन मिला, मुझे लगा कि एक ऐसे मंच पे मैं खड़ा हूं और वो बस ऐसे मंच था कि एक थिएटर के समान नजर आ रहा था। I remember the lights were shining so brightly in my face I couldn't tell what all was out there. और मुझे याद है वहां पर ऐसे लगी हुई बत्तियां इतनी तेज चमक रहा था कि उसके नीचे क्या चीज है करके हम देख नहीं पा रहे थे। But I remember holding the mic and I was getting ready to preach in this dream. अब मुझे याद है इस सपने में मैं मेरे हाथ में माइक था और मैं तैयार हूं प्रचार करने के लिए। All of a sudden the real lights came on and it was like the roof just came off the building. अचानक से एक वास्तविक रोशनी आने लगी, जैसे कि छत खुल गया हो। I found that I wasn't standing in a theater, I was actually standing in a field. तब मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ एक थिएटर के अंदर खड़ा नहीं हूं, मगर एक ऐसे मैदान के बीच में खड़ा हूं। I remember seeing the sea of humanity stretch out as far as the eye could see. और मैं देख नहीं पाया लोगों की, मनुष्यों के एक समुद्र के समान इतने लोग, बड़े भीड़ चारों तरफ में फैले हुए आ रहे हैं। It was so big, the vastness of the harvest. और इतना बड़ा था, फसल की इत महानता था। I heard a voice boom from heaven in this dream. इस सपने में स्वर्ग से एक आवाज मुझे सुनाई दिया। The voice said, "More than the sun can show, more than the horizons can hold." और तब मुझे परमेश्वर की आवाज आकाशवाणी हुई, जितना तक सूरज की किरणों में देख सकते हो, जितना तक दोनों तरफ की सीमाओं में फैल सकता है। Through this dream, God was directly putting in my heart the vastness of the harvest that must be reaped in our generation. और इस सपनों के द्वारा परमेश्वर ने उस बोझ को डाल के बता रहा था कि फसल कितनी फैला हुआ है, कितनी महान है। If we're going to reap that harvest, we must be financed accordingly. अगर इस फसल को हमें परमेश्वर के लिए काटना हो तो हमारे लिए परमेश्वर की आर्थिक प्रबंध भी जरूरत है। But also the church does need cleansing in this regard. मगर साथ ही साथ कलीसिया के लिए शुद्धिकरण होना इस कार्य के लिए जरूरी था। In many cases, man is guilty of serving mammon rather than God. कई अवसर पर मनुष्य इस कार्य में पछतावा करता है क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ धन संपत्ति का सेवा करता It है। can happen so quickly, the switch. और इस बदलाव बहुत ही क्षण भर में अचानक से हो सकता है। When you find yourself not even making decisions anymore based on what God has said, but based on the financial situation. आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाएंगे कि आगे आप अपने निर्णय परमेश्वर की कहने के अनुसार नहीं, मगर आपके अंदर आर्थिक प्रबंध के अनुसार निर्णय लेते हैं। This is, I believe, ultimately one of the main reasons why God began to speak to me about finances during this season. तब ही मुझे पता चला कि आखिरकार परमेश्वर किस विषय में मुझसे बात कर रहा है, इस आर्थिक कार्य के विषय पर। It's because He was preparing me for what I'm carrying today. और वो मुझे तैयार कर रहा है कि जिस कार्य के लिए मैं अभी आगे बढ़ा हूं उसके लिए। He was desiring to cleanse the prophetic anointing in my life. वो चाह रहे थे कि मुझे उस भविष्यवाणी की उस कार्य के लिए मुझे शुद्ध करने पाए। But I can remember in this dream, I heard the Lord say, the million soul mantle. और मुझे याद है इस सपने में परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ऐसे चद्दर जो करोड़ों प्राण है, आत्माएं हैं। I believe the Lord put it in my heart that day through that dream. There's going to be more than 100 end-time revivalists that will be able to gather more than 1 million people in a single meeting. और परमेश्वर उस सपनों में मुझे मेरे अंदर आवाज दे रहा था, कह रहा था कि ऐसे सैकड़ों बेदारी कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कई करोड़ों आत्माओं को जीतने वाले हैं।
Up until this point, there's only been a few men of God, women of God, that's been able to gather more than 1 million people in one meeting. अब तक जो है कुछ ही लोग परमेश्वर के दास और दासी थे जिनके द्वारा कुछ करोड़ों लोगों को परमेश्वर में ले आ सकें। But I believe with this next wave of harvest, there's going to be more than 100. अब मैं विश्वास करता हूँ फसल की अगले बहाव में हम बड़े पैमाने में देखने पाएंगे that will do that by the power of God. और वे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा करेंगे। It's going to take millions and billions of dollars to fund that kind of harvest. इस प्रकार की सेविकाई के लिए कई करोड़ों डॉलर की जरूरत पड़ेगा। But the Lord wants our hearts pure in this regard now so that we can be properly prepared to carry that kind of power. मगर उस कार्य के लिए अब हम अपने आप को शुद्ध कर लें ताकि सही रीति से सही तरीके से इस कार्य आगे बढ़ने पाएं। I remember as the Lord called me into the ministry full time just a few years after I started traveling with that man of God. मुझे याद है जब परमेश्वर कुछ ही सालों के बाद जब उस दास के साथ में सेविकाई शुरुआत किया, उनके साथ मैं भ्रमण में था। Remember I was on the airplane, I had another visitation from a financial angel. जब मैं हवाई जहाज में था तब मैं एक और बार मुलाकात हुई इस आर्थिक स्वर्गदूत के साथ। This angel presented himself as the messenger of money. और ये स्वर्गदूत अपने आप को एक पैसे की संदेशवाहक के समान प्रस्तुत किया। He told me that God the Father had assigned him to my life. उसने कहा पिता परमेश्वर ने उसे काम दिया है कि मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। He said that everywhere I went, God was going to pay my way. और उसने कहा जहां जहां मैं जाऊंगा परमेश्वर मेरे सफर का हर एक खर्चा पूरा करेगा। He said that when I came back from the places that God would send me, I'd come back with a bag full of money. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब मैं उस सेविकाई निभाकर अपने स्थान वापस आऊंगा थैला भर के पैसा भर के ले आऊंगा। It's kind of an interesting phrase. ये सुनने में बहुत ही दिलचस्प लगता है। But the message was that as God was calling me out full time, launching me into the harvest, और संदेश ये है कि परमेश्वर संपूर्ण समय उसके सेविकाई में बुला रहा है, उसके कार्य में मुझे लगा रहा है, that He was going to be the one that's going to finance me because He had called me. और वही मेरा आर्थिक प्रबंधक होगा क्योंकि उसी ने मुझे सेविकाई के लिए बुलाया है। The statement about coming back with a bag full of money, और जो वाकई में इससे वापस आता जो मैंने कहा थैला भर के पैसा लेके आऊंगा, it meant that God wasn't just going to pay my expenses. इसकी मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो हमारे खर्चे को पूरा नहीं करेगा। It meant that He was going to bless me above and beyond my need, even in the ministry. और वो कहता है कि मेरे सारे जरूरतों को उससे भी बढ़कर वो मुझे आशीष देंगे सेविकाई में। This is what the Bible calls eating the fat of the land. और यही बाइबल बताता है कि उस जमीन की कुशल भाग को हम खाते हैं। When Joseph was called by Pharaoh in Genesis 45, उत्पत्ति 45 अध्याय में देखता जब यूसुफ को फारोन ने बुलाया, Pharaoh said, call your family, call your father, bring them into the land of Goshen. उसने कहा कि अपने पिता अपने परिवार सबको बुला और गोशान के स्थान में रहे। Pharaoh said, for now they shall eat the good of the land and the fat of the land. और तब फारोन ने उससे कहा अब से लेकर तेरे घराने तेरे लोग इस जमीन की बेहतर और इस जमीन की कुशल चीजों को खाएंगे। That's found in Genesis 45, 18 and 20. और यही उत्पत्ति 45 अध्याय 18 और 20 में देखते हैं। What does it mean to eat the fat of the land? और जमीन की कुशल को खाने के मतलब क्या है? The fat represents the excess. और जो कुशल को जो बताता वहां की बहुतायत को, It represents the extra. और वहां की जो ज्यादा है उसे बताता है। Usually if people go to the gym and work out, it's because they got a little extra they want to work off. बहुत सारे लोग जो है कसरत करने के लिए जाते हैं जिम में क्योंकि उनके शरीर बदन में कुछ ज्यादा आ चुका है। But as Pharaoh said that to Joseph in the book of Genesis, God's saying that to us today. जो बातें फरोन ने यूसुफ से कहा उत्पत्ति 45 अध्याय में, वही बात आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। He's saying, I'm giving you a good land flowing with milk and honey. वो कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा जमीन दूंगा जहां दूध और शहद बहता है। He's saying, I want you to eat the fat of the land. और वो कहता है उस जमीन की कुशल भाग को तुम्हें खाना है। I want you to have more than enough. परमेश्वर कहता है तुम्हारे पर्याप्त से भी बढ़कर तेरे पास होने के लिए मैं चाहता हूँ। This is very, very healthy thing. ये बहुत ही अच्छा और सेहत भरा है। When you have more than enough, जब आपके पास पर्याप्त से भी ज्यादा हो, you can bless your family. आप अपने परिवार को आशीष दे सकते हैं। Not just your family, you can be a blessing to others. और अपने परिवार से भी बढ़कर दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बनेंगे। God blesses us so that we can be a greater blessing to the world around us.
परमेश्वर हमें इसलिए आशीष देता है ताकि हम संसार भर के हमारे चारों तरफ के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। We just got to purpose to be that blessing. हमें सिर्फ निर्णय लेना कि मैं उस प्रकार की आशीष बनूं। We can't be a dam. We can't allow blessings to flow in and have it just stop at us in our household. हम एक बांध बन के नहीं रह सकते कि वहां पर आशीष हमारे अंदर बहता हो, हमारे परिवार में आता हो, मगर हमारे परिवार में ही सीमित रह जाए। We've got to open up our lives and allow the blessings of God to flow through us. हम अपने जीवन को खोल देना है ताकि परमेश्वर की आशीष हम में से बहने के लिए अनुमति देना है। So I can remember that time in my life in ministry, God had called me full time on the road. अब मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपने संपूर्ण समय की सेविकाई के लिए, मैं और मेरे परिवार थे सड़क में थे। I moved my entire family from Alaska to South Carolina on the east coast of the United States. जब परमेश्वर ने बुलाया, मैं और मेरे परिवार अलास्का को छोड़कर साउथ कैरोलिना जो पूरब तट के किनारे हैं वहां पर मैं आ गया। This was a major step of faith for me and my wife. मेरे और मेरे पत्नी के लिए एक बड़े विश्वास का कदम था। We were finally stepping into that ministry that God had called us to all those years before. इतने सालों के पहले जो परमेश्वर ने सेविकाई के लिए मुझे बुलाया है और उसमें हम शामिल होते जा रहे हैं। But the Lord was so good and gracious to give me a revelation of finances. मगर परमेश्वर इतना भला और इतना अच्छा था कि परमेश्वर ने अपने वो दर्शन के द्वारा दिखाया कि अपनी आर्थिक प्रबंध की। Yes, it was accompanied by visions, even angelic encounters. हाँ, उसमें परमेश्वरीय दर्शन था, स्वर्गदूतों की भेंट भी थी। But ultimately, it was about what God showed me in the Holy Bible. आखिरकार जो कुछ परमेश्वर ने पवित्र बाइबल से दिखाया है वही बात है। That's where the real revelation of God is established. और यहीं पर वाकई की परमेश्वर की प्रकाशन स्थापित किया गया है। But I remember seeing at the beginning of my ministry as I launched out just miracles, financial miracles. और जैसे मैं सेविकाई में निकल पड़ा, मैं देखने पाया चमत्कार रीति से आर्थिक बातों के बारे में। God started opening doors all over the world for me to go and preach and minister. संसार भर में परमेश्वर मेरे लिए द्वारों को खोलने लगा ताकि मैं जाके संसार भर में सेविकाई को कर सकूं। He was financing me as I was launched into the harvest. परमेश्वर मेरी आर्थिक प्रबंध कर रहा था जैसे मैं उसकी सेविकाई में आगे बढ़ने लगा, सेविकाई में लगने लगा। I want you to know today that we're all called into a harvest field in the world. मैं आपको बताना चाहता हूं, सब ही जो है संसार भर के फसल कटने के लिए बुलाए गए हैं। Your harvest field may not look like mine. हो सकता है आपके फसल की मैदान जैसा मेरा है वैसे दिखाई नहीं दे रहा हो। It may not look like having a microphone and preaching to masses and seeing the sick healed, in services like I do. हो सकता है आपका ऐसा सेविकाई नहीं हो जैसे मैं माइक पकड़कर बड़ी भीड़ के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रचार करता हूँ, जहाँ चिन्ह और चमत्कार होता है, चंगाई होती है। Your harvest field may be a retirement home you go and minister and volunteer at. हो सकता है आपका खेत जो है, जो लोग विश्राम पाकर बुजुर्ग लोग जहाँ रहते हैं उनके बीच में जाके कार्य करना हो। Maybe you're a teacher that teaches little kids. Maybe that's your harvest field. आप शिक्षक हो सकते हैं जो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होगा, वही आपका फसल का खेत है। Maybe you work in the corporate world. You have the opportunity to talk about Jesus with people. That could be your harvest field. हो सकता है दफ्तरों में कार्य करते हो जहां आप उन लोगों के लिए सुसमाचार सुना सकें और वही आपके लिए परमेश्वर का फसल का खेत है। But I want you to know today that whatever God calls you to, He also releases faith for being financed by heaven. मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं पे भी क्यों ना हो जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया हो, साथ ही साथ वो विश्वास भी देता है, उस सेविकाई का प्रबंध परमेश्वर आपके लिए करेगा। But the greater the call, the greater the finances that will come from God. जितनी बड़ी सेविकाई है उतना ही बड़ा परमेश्वर की आर्थिक प्रबंध भी आपके लिए होगा। And this is where we have to be purified in our hearts to carry that call. और इसीलिए उस बुलाहट के प्रति इस कार्य में हमें अपने हृदय को, अपने आप को शुद्ध करना है। This is all very, very important to understand for the end time Elijah messengers that God is raising up today. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब बातें, क्योंकि इन अंतिम दिनों में जैसे एलिया की समान संदेशवाहकों को परमेश्वर तैयार कर रहा है उस कार्य के लिए। Next week we'll continue talking about this subject. अगले हफ्ते फिर से हम इसे जारी रखेंगे इस विषय में बात करते हुए। But let me first pray for you. मगर उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Dear Lord Jesus, we thank you for gathering us together today on this broadcast. प्रिय प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि हमें एक साथ यहाँ पर एकत्र करने के लिए। We thank you for faith for the harvest, Lord. धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आपके फसल के लिए है। We thank you for faith and hope, Lord,
for the calling that you've placed on our lives. धन्यवाद उस विश्वास के लिए प्रभु जो आपने बुलाहट और जो फसल आपने हमारे लिए रखा है उस सेवकाई के प्रति। Lord, I thank you for calling your people that are watching this broadcast today. धन्यवाद पिता कि आप उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इस फसल के लिए उन्हें भी बुलाए हैं। But Lord, I also thank you that in your plan, you have already designated all the finances that we're ever going to need in order to fully step in and accomplish the call of God in our lives. पिता, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस कार्य सेवकाई के लिए आपने हमें बुलाया है, जहाँ पे हमें कदम लगाना है, उसके लिए आप अपने आर्थिक प्रबंध को भी अपने लोगों के लिए तैयार रखे हैं। Lord, I pray that you would release faith for finance in the harvest. पिता, प्रार्थना करता हूँ वो विश्वास इनके जीवन में दे दे ताकि अपने सेवकाई की आर्थिक जरूरतों के लिए आपके ऊपर रखने पाए। And Lord, we pray as this power flows through us that our hearts would stay pure before you. हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे ये सामत आप में से निकलता हमारे अंदर बहता है, साथ ही साथ हम आपके सामने शुद्ध रहने पाए। Let us not be overtaken by the spirit of mammon. हमारे लिए धन की आत्मा के द्वारा बहक ना जाने के लिए हमें मदद कर। Let us not be overtaken by the love of money or the cares of this life. संसार की जीवन की जरूरतों में और हमारी प्रेम जो पैसे के प्रति उसमें से हम बहक ना चले जाएं। For those are the things that will ultimately choke out the word, you said, Jesus. क्योंकि प्रभु आपने कहा अंतिम परिणाम ये परमेश्वर के वचन को कुचल डालेगा। Lord, we thank you for grace to walk in this in Jesus' name. प्रभु उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि इसमें चलने के लिए आपने हमें दिया है, यीशु के नाम में Amen. आमीन। I pray this broadcast has been a blessing to you today. मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रसारण आपके लिए आशीष के कारण होगा। Thank you for joining us here at Angel TV for another special episode. एंजल टीवी के एक और खास सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Be sure to join me next week as I continue with this subject. जैसे शीर्षक को जारी रखता हूँ, अगले हफ्ते भी आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।